Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you all the chapter number 9 of the subject social studies. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करूंगी. The first thing you have to do is write today's date, that is 25/11/2020. The difficult words which I have underlined, you all will also underline them during my explanation. जिन डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उन वर्ड्स को आप भी अंडरलाइन करेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन के दौरान. Communication is a process by which organisms exchange information by several methods. All social animals, bees, ants, whales, and apes communicate with one another, but only humans who have developed a language. However, before the advent of language, man also used signs and sound to express himself. Today, different means of communication help us to send and receive messages and keep in touch with our friends and relatives all over the world. We have came a long way from the age of teleprinters and radios to the age of the machines, computers, the internet, the cell phones, and cyberspace. In the recent past, there has been an explosion in the methods of communication. You can see and talk with your friend in America sitting in your bedroom through the internet. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक दूसरे तक अपनी बातचीत पहुंचाते हैं. कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होता है, बोल के, लिख के, प्रिंट किया हुआ, साइन का यूज करके. साइन का यूज मतलब कि हाथों से इशारे करके. तरह तरह के मेथड्स होते हैं एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के. वह पहले की बात है, पहले से अब में बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है. हम अपने फ्रेंड्स जो अमेरिका में बैठे हैं उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, वीडियो कॉल करके. अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन क्या था हम उसके बारे में पढ़ेंगे. नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड स्मोक सिग्नल्स and African tribes took the help of drum beats to send messages across. पहले अमेरिका के लोग स्मोक सिग्नल्स यानी कि धुएं का इस्तेमाल करते थे अपनी बात पहुंचाने के लिए, और अफ्रीका के लोग ड्रम बजा के इस्तेमाल करते थे अपना मैसेज पहुंचाने के लिए. The horsemen and trained homing pigeons began to be used for sending messages far and wide. फिर उसके बाद घोड़े पे सवार लोगों को लिख के भेजा जाता था मैसेज, या बोल के भेजा जाता था कि जाओ हमारा मैसेज ये पहुंचा के आओ, या फिर कबूतर को चिट्ठी पकड़ा के कबूतर को ट्रेन किया जाता था कि कहाँ पे ये मैसेज पहुंचाना है. Probably even a million years ago our ancestors were speaking. Ancestors मतलब हमारे दादा के जो फादर, उनके फादर, उनके फादर, ये ancestors उनको बोला जाता है. Our ancestors were speaking some language, but that had a limited vocabulary and of course a slower delivery. But exactly when this special art of communication was developed is not known. Early men drew pictures of natural objects they knew about on the walls of the caves. पहले के लोग कम्युनिकेशन करने के लिए गुफाओं की दीवारों पे भी कुछ चीज़ों की चित्र बनाते थे जिनके बारे में उनको नॉलेज होती थी. Gradually they started using symbols to express idea. फिर धीरे धीरे उन्होंने इशारे करके एक दूसरे से बात करना शुरू किया. Egyptians developed a language called as hieroglyphics. इजिप्ट के लोगों ने एक लैंग्वेज को डेवलप किया जिसका नाम था हायरोग्लिफिक्स. दिस लैंग्वेज वॉज अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट. ये लैंग्वेज पिक्चर स्क्रिप्ट लैंग्वेज थी, यानी कि पिक्चर्स बनाने की मदद से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना. Pictorial form of writing was followed by Greek and Latin letters. From Latin sprung different European languages included English. The primary script was developed in India about 2000 years ago. Hindi has evolved from Devanagari script, which is a phonetic language. पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स. अब हम पढ़ेंगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स के बारे में.
पोस्टल सिस्टम बिगैन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। पोस्टल सिस्टम 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इट इज स्टिल द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज भी लोग कई बार लेटर लिखते हैं, लेकिन अब ये कॉमन नहीं रह गया है। इन द बिगनिंग वी यूज टू सेंड आवर लेटर्स, कार्ड्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय पोस्ट। पहले हम लोग जो भी लेटर लिखा जाता था या कार्ड भेज सकते थे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पोस्ट की मदद से। हमारा पोस्ट कौन लेके आता है? पोस्टमैन। अर्जेंट शॉर्ट मैसेजेस वर सेंट थ्रू टेलीग्राम विच वॉज लॉट फास्टर। टेलीग्राम्स वर बेस्ड ऑन मॉर्स कोड। इससे अर्जेंट, अब लेटर तो जाने में समय लगता था, लेकिन अगर आपको किसी को अर्जेंट मैसेज भेजना होता था तो आप टेलीग्राम का यूज कर सकते थे, जिसमें शब्द लिमिट बहुत कम होती थी। कुछ ही शब्द में आपको मैसेज पहुंचाना होता था और ये लेटर के मुकाबले जल्दी पहुंचता था। ग्रेजुअली more and more services were introduced to provide better and faster communication. For example, express delivery and quick mail service, and more recently there came speed post which usually delivers our mail the very next day. अब ये कह रहा है इसके बाद कई चीज़ें आने लगी, जैसे क्विक मेल सर्विस, एक्सप्रेस डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, जिसकी मदद से आज हम ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो स्पीड पोस्ट से आता है। ये हमें बहुत जल्दी हमारे सामान को डिलीवर करता है। This kind of service is also provided by many private courier service companies, example Blue Dart, First Flight, DTDC. With all these faster services, Telegram is no longer much in use today. ये कह रहा है पोस्टल सर्विसेज तो आज भी यूज में है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं इस बिजनेस में जो हमारे पार्सल को जल्दी हम तक पहुंचा देती हैं। अब टेलीग्राम किसी के भी यूज का नहीं रह गया। टेलीफोन Today it is the most common, effective and fastest means of communication. आज के समय पे टेलीफोन सबसे कॉमन और सबसे जल्दी मेथड है किसी तक अपनी बात पहुंचाने का। We get the reply of our conversation immediately through a phone. हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसका जवाब तुरंत मिल जाता है। लेटर जब आप भेजते हो वो वहां से लिख के भेजेंगे तो उसमें समय लगता है, लेकिन टेलीफोन एक ऐसा है जब आप फोन पे बात करते हो तो आप जो भी बात करते हो उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाता है। You might have been PCO, STD, ISD, etc. written on सम टेलीफोन बूथ्स जहाँ पे पहले आप लोग जाके लैंडलाइन से कॉल करते थे, वहाँ पे STD, ISD, PCO लिखा रहता था। PCO स्टैंड्स फॉर पब्लिक कॉल ऑफिस, यानी कि यहाँ पे लोग आके कॉल कर सकते हैं। STD स्टैंड्स फ्रॉम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एंड ISD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। द मोबाइल फ़ोन इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ टेलीफोन। लेकिन आज के समय पे टेलीफोन भी लोगों के घर में बहुत कम रह गए हैं और जो सबसे कॉमन हो गया है वो है मोबाइल फ़ोन। आजकल हर घर में आपको, जितने व्यक्ति हैं बड़े, उनके हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। जितने व्यक्ति उतने मोबाइल, क्योंकि ये सबसे कॉमन मेथड हो गया है कम्युनिकेशन करने का। It is not surprising that with the latest technology, one can send a picture, messages, video message through the mobile phone. One can also share audio and video files if having same kind of facility in his mobile phone. मोबाइल की मदद से ना तो हम सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बल्कि वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज, फ़ोटो सब भेज सकते हैं। हम इस समय ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? सिर्फ मोबाइल की वजह से। मोबाइल ना होता, इंटरनेट ना होता तो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज ना हो पाती। हम आपको वीडियो भी भेजते हैं, ऑडियो भी भेजते हैं, फ़ोटो भी भेजते हैं, तो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट इज फैक्स। Also there is fax, which full form is facsimile automated Xerox. This system instantly transferred printed or written messages through a small equipment attached to a telephone connection. Earlier we had teleprinter exchange to send typed messages. फैक्स मशीन क्या होता है? हमने कोई लेटर यहाँ पे टाइप करवाया, वो हम जैसे ही सेंड करेंगे दूसरे के पास भी वो फैक्स मशीन होनी चाहिए, वो तुरंत उसके पास वो लेटर निकल आएगा। Email. It is the latest mode of sending a messages. It takes very little time to send a message. It is
इट इज़ सेंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ईमेल क्या होता है? सबका जीमेल अकाउंट, बड़े लोगों का जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनका जीमेल अकाउंट होता है। जीमेल अकाउंट की मदद से हम लिख के भी किसी को ईमेल कर सकते हैं, उसको मैसेज बुला सकता है। ईमेल आप तभी कर सकते हैं जब आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन होगा। Mass media. We also need to interact with a large number of people at the same time. This is called mass communication. आप एक बार में बहुत सारे लोगों तक अपनी बात जब पहुंचाते हैं तो उसको हम मास मीडिया कहते हैं। Such an interaction requires mass media. The tools of mass media include radio, television, internet, books, newspapers and magazines. मास मीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रेडियो, जब रेडियो कनेक्शन आता है तो जो भी चैनल आप चलाएंगे तो वो वही चीज़ सबको सुनाई देगी। टेलीविज़न पे आप जो भी चैनल लगाएंगे, जैसे अगर आपने एबीपी न्यूज़ लगाया तो पूरे इंडिया में एबीपी न्यूज़ में वही आ रहा होगा जो आप देख रहे होंगे। इसी तरह न्यूज़पेपर, सबके यहाँ एक ही न्यूज़पेपर छप के आता है, चाहे वो दैनिक जागरण कर लें तो उनकी अलग जो भी न्यूज़ रहती है, अमर उजाला। लेकिन अगर अमर उजाला सबके पास आ रहा है तो सबके पास एक ही न्यूज़पेपर आ रहा है। मैगजीन, बुक्स, ठीक है, ये सब क्या है, इनकी मदद से हम अपनी बात बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रेडियो के बारे में। आप सबको पता है रेडियो क्या है। रेडियो में कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज़ आती है। इसमें गाने भी चलते हैं, कुछ कम्युनिकेशन भी होता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें वीडियो भी दिखती है और आवाज़ भी आती है, दिखता भी है और आवाज़ भी आती है। इसकी मदद से हम तक मूवी देखते हैं तो कुछ स्टोरी पहुंचती है, न्यूज़ सुनते हैं तो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेशन का जिसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई वीडियो नहीं है और कोई आवाज़ नहीं है। रेडियो में सिर्फ आवाज़, टेलीविज़न में आवाज़ और वीडियो दोनों, और बुक्स, न्यूज़पेपर में सिर्फ लिखा हुआ होता है, ना वीडियो रहती है ना ऑडियो। एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है एड। Advertisement is one of the ways through which the advertiser communicates with the mass. An advertisement gives you some information about the product or makes you aware of certain events and updates. People advertise through radios, televisions, internet, hoardings, magazines and wall stickers. एडवर्टीजमेंट क्या होता है? अगर कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, जब तक वो उसको एडवर्टाइज नहीं करेगी, उसका प्रचार नहीं करेगी, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है। हम कई बार किसी प्रोडक्ट का ऐड टीवी में देख के या न्यूज़पेपर में पढ़ के उसको खरीदते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट का ऐड बहुत अच्छा है तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। इसीलिए अपने प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का प्रचार करना बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए। सिनेमा, सिनेमा मतलब मूवीज़। मूवीज़ की मदद से हमको एक स्टोरी समझ में आती है, एक स्टोरी मिलती है कि हाँ इसकी स्टोरी ये थी। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर मैन मेड मशीन्स दैट आर सेंट इनटू स्पेस। सैटेलाइट्स मैन मेड मशीन है जो स्पेस में भेजी जाती हैं। दे कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Earth stations have aerials that receive their signals and relay them. In this way, we see many television programs, send telegrams and radio messages. We can also make telephone calls because of these satellites. सैटेलाइट्स की वजह से ही हम टीवी, रेडियो और फोन्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। सैटेलाइट्स कनेक्शन वीक होता है तो नेटवर्क चला जाता है। आर्यभट्ट, भास्करा, रोहिणी एंड भास्कर 2 आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। इंडिया की कुछ सैटेलाइट्स के क्या नेम हैं? आर्यभट्ट, भास्करा, रोहिणी एंड भास्करा 2। नेक्स्ट इज द इंटरनेट। इंटरनेट जो कि सबसे पॉपुलर है इस समय पे। द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट आर द लेटेस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे लेटेस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है कम्युनिकेशन करने का। दे प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटीज टू सर्च ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक यू विश टू नो अबाउट। आप कंप्यूटर में, अगर आपके कंप्यूटर और मोबाइल में इंटरनेट है तो आप उसकी मदद से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में टाइप करके, क्रोम में टाइप करके। चार्ल्स बैबेज, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, इज कॉल्ड द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो हैं चार्ल्स बैबेज। He made a machine called analytical machine that led to the development of computers. ये कंप्यूटर का इन्वेंशन इन्होंने किया था। एक मशीन बनाई थी, एनालिटिकल मशीन, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स डेवलप हो सके थे।
द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी ह्यूज एंड हैवी. जो सबसे पहले कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े बड़े और बहुत भारी थे. बट टुडे वी हैव कंप्यूटर्स दैट कैन इवन फिट इनटू आवर पॉकेट्स. बट आज के टाइम पे हमारे कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो हमारे पॉकेट में फिट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स. क्यों? क्योंकि उसमें भी हम इंटरनेट पैकेज डलवाते हैं. The internet is a network of computer that is available to us through an instrument called the modem. कंप्यूटर में हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं मॉडम, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट चलता है. The internet opens up a vast world before us where we can browse the websites and read and learn anything and everything on any topic of our choice. इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं. हम सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हैं. द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. Thousands of years ago, people wanted to know more about each other and the world, but it was not possible. It was an impossible task. Today, the impossible has become possible. The modern means of communication have brought the people all over the world closer to each other. As we come to know about people from different parts of the world, we feel that the world is shrinking. We can rightly call our world a global community village, isn't it? पहले के समय पे ये हमको नॉलेज नहीं मिलती थी, या पहले के लोगों को नॉलेज या पता नहीं चलता था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरी जगहों में क्या हो रहा है, क्योंकि पहले इतने अच्छे कम्युनिकेशन मेथड्स नहीं थे. बट अब हमें पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ चैनल्स पे मिल जाती है, इंटरनेट पे मिल जाती है. तो अब ये बहुत आसान हो गया है पूरी वर्ल्ड की जानकारी रखना. सो ये था चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन, कीपिंग इन टच का. लेट्स डू द एक्सरसाइजेज नाउ. चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड टू सेंड मैसेजेस थ्रू स्मोक सिग्नल्स. Second, it uses moving pictures to convey the message. Television. Third, who is called the great grandfather of computers? Charles Babbage. Choose the correct answer. Dash is a method by which organisms exchange information. Communication. Second, dash is both audio and visual. किसमें हमें आवाज भी सुनाई देती है, दिखाई भी देता है? टीवी. थर्ड, इन ओल्डन डेज डैश वर यूज टू सेंड मैसेजेस. पहले के समय पे किसके इस्तेमाल की वजह से किसके इस्तेमाल से मैसेजेस भेजे जाते थे? कबूतर या कौवे? कबूतर यानी पिजन्स. फोर्थ, सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. फिलिंग द ब्लैंक्स. डैश डेवलप्ड अ लैंग्वेज कॉल्ड एज हेरोग्लाइफिक्स. इजिप्शियंस. EGYPTIANS. Postal system began in the early 19th century. NINETEENTH. Third, the dash is the advanced version of the telephone, mobile phone. Fourth, radio broadcasting began in Mumbai and Kolkata in 1927. Fifth, the computer and internet are the latest means of communication. Write T for true and F for false statements. First, today we use different kinds of means of communication. हाँ, आज के टाइम पे हम बहुत सारे means of communication का इस्तेमाल करते हैं. True यानी कि T. Second, telegrams are no longer in use today. True, आज के टाइम पे telegrams कोई यूज नहीं करता है. Third, email is the slowest method to send a message. False, email fastest method है मैसेज भेजने के लिए. Fourth, radio, television, newspapers are the means of mass communication. True, radio, television, newspaper जो है वो fastest means of mass communication में आता है. mass communication मतलब अपनी बात बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंचाना. True. Fifth, the first generation computers were light and compact. नहीं, first generation computers बहुत heavy थे, तो ये भी false है. Match the following. टीवी किसने इन्वेंट की थी? बेयर्ड ने. Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Telegraph was invented by Samuel Morse. Radio was invented by Marconi. So 1, 4, 2 and 3. So that's it. Chapter number 9 is over. Explanation plus exercises, question answers you will get in the homework. That's it for the today's class. Thank you very much.